A cos phi sin omega t. Okay, so we can rearrange the terms and it becomes A, you can take outside, so A exponential minus RT, and inside if you see this is sin A cos B plus cos A sin B, so it could be written as sin of A plus B. So sin is sin of A is omega t and B is phi. Okay, so this is the solution of the differential equation of damped harmonic oscillator for low damping. Okay, so this is the solution of the damped uh, harmonic oscillator for the case when the damping is low, right? So Excuse me, ma'am. yes. Can you go to the previous slide, please? Yes, sure. Please. One Thank second. you, ma'am. We have just mathematically solved this equation and nothing else. Okay, हमने r square minus omega naught square को iota omega पुट किया है, right? क्योंकि r square यहाँ पे कम है, r square is less than omega naught square, so this will come out to be negative of under root. So negative of under root is iota. Inside the under root you will be left with this term which can be written as another term by another term omega. So this is iota omega, right? अब इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व किया है, नथिंग एल्स. इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व किया है, नथिंग एल्स, राइट? Yes, should I? Yes, ma'am. Okay. So using this solution, now we can find out the values of amplitude, time period, okay, and frequency of vibration, right? So first of all, let us talk about the amplitude. So the amplitude of oscillation is this one. So amplitude is this is A एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी. इसको ए को ना आपकी बुक में अल्फा से भी डिनोट किया हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. इसको अल्फा से भी आप डिनोट कर सकते हो एज यू विश. सो आई एम टेकिंग इट अल्फा. This one is alpha. So this is amplitude is alpha exponential minus RT. This is known as the amplitude, which is constant, which is not constant. This is not constant, but it decay with respect to time. It decays exponentially with respect to time, right? तो यहीं से पता चल रहा है आपको amplitude is equal to alpha exponential minus RT. So T के साथ क्योंकि exponential relation है, तो amplitude is decaying exponentially with respect to time. Okay. So this is underdamped motion, as I told you earlier. And if you want to represent it, this is simply like amplitude जो है वो आपका exponentially decay हो रहा है. तो हमारा जो first case था ना, जो मैंने आपको curve बना के दिखाया था, you can also say that that is a case of under damping or low damping. ठीक है, इस तरह से ये देखो ये exponentially आपका amplitude इसमें decay कर रहा है, right? So this is the case of low damping or under damping or underdamped motion. Okay, so this is the amplitude. अच्छा, एक और चीज हमें इसमें डिफाइन करनी है. What do you mean by
मीन लाइफ टाइम क्या होता है? मीन लाइफ टाइम. So the time interval in which the amplitude of oscillation falls to 1 by e of its initial value. Okay, the time in which amplitude of oscillation falls to 1 by e of its initial value is called mean lifetime. Is called mean lifetime. तो जो आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड था उसको 1 बाई ई डिके होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर मीन लाइफ टाइम, राइट. तो अगर आप इसमें देखो आपका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था वो कितना था, इफ ए इज इक्वल टू, इफ दिस इज इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर है, राइट. तो शुरू में जो एम्पलीट्यूड होगा वहां पे क्या होगा, आपका टी इज इक्वल टू 0 होगा, राइट. जो इनिशियल एम्पलीट्यूड होगा वहां पे t इज इक्वल टू 0 होगा. अब अगर आप t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दो तो आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना आएगा, बताइए. Zero. यस Sorry. यस. सो इनिशियल एम्पलीट्यूड इज अल्फा, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन लाइफ टाइम क्या है, मीन लाइफ टाइम इज द टाइम बाय विच इन विच द इनिशियल एम्पलीट्यूड डिकेज टू 1 बाई ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, इनिशियल मतलब अल्फा का 1 बाई ई टाइम जो है उतना एम्पलीट्यूड डिके होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर मीन लाइफ टाइम, राइट. सो इट मीन्स दैट 1 अपॉन ई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस आर, और यहाँ पे जो टाइम होगा अभी वो क्या टाइम होगा, मीन लाइफ टाइम टॉ एम. ओके, सो दिस मीन्स दैट क्योंकि अल्फा दोनों तरफ है तो आपका ये रह जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आर टॉ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ई. दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग ले लीजिए. सो दिस विल be left with exponential log से कैंसिल हो जाएगा. So you will be left with minus r tau m is equal to, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1. हाँ, -1 रह जाएगा इसमें, ठीक है. So this means that tau m is equal to 1 upon r, right. Tau m is equal to 1 upon r. Okay, so this means that lifetime comes out to be 1 upon r, or mean lifetime tau m comes out to be 1 upon r. अब आपको ये भी याद होना चाहिए हमने r क्या सब्स्टिट्यूट किया था इनिशियली जब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था डैम्प्ड ऑसिलेटर का, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का. तो हमने वहाँ पे r एक क्वांटिटी एज्यूम करी थी. यू रिमेम्बर r is equal to this one, you can see 2r is equal to b upon m. ठीक है, where b क्या था आपका, डैम्पिंग कांस्टेंट था, राइट. और m आपका मास है, राइट. सो r is equal to b upon 2m will be the value of r. तो इसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, so this tau m will be equal to 2m upon b. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था. So we were talking about mean lifetime, right? Mean lifetime is the time in which the amplitude decays to 1 by e times of its initial value. इनिशियली जितना एम्पलीट्यूड था उसका कितने टाइम में 1 अपॉन ई हो जाएगा, दैट इज योर मीन लाइफ टाइम. ठीक है, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड अल्फा होता है क्योंकि इनिशियल तब होगा जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे. तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो दिस क्वांटिटी विल बिकम 1. So therefore initial amplitude is equal to alpha. तो अल्फा का 1 अपॉन ई टाइम्स जो होता है वो आपका मीन लाइफ टाइम होता है.
तो इसको इक्वल कर दोगे इसके, तो यहाँ पे t की जगह आपको टी एम लिखना पड़ेगा, टॉ एम लिखना पड़ेगा। सो यहाँ से टॉ एम आपके पास आ गया, विच इज इक्वल टू 1/r। ओके मैम। ओके, सो टॉ हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू 1/r और 2m/b। अगर डैम्पिंग नहीं होगी तो क्या होगा? If there is no damping, if the damping is absent, डैम्पिंग एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि B आपका 0 है, ठीक है, और सॉरी R आपका 0 है, राइट। तो R अगर आपका 0 है, दैट मीन्स दैट टॉ M इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मीन लाइफ टाइम आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी मोशन को सेट किया है, किसी वाइब्रेशन को आपने सेट किया है, और इसका लाइफ टाइम जो है या इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मान लीजिए अगर t है, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t ही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, राइट। सो इट मीन्स दैट आपका जो मोशन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम में मोशन अगर सेट करोगे तो उसमें क्या होगा, द बॉडी विल कीप ऑसिलेटिंग, राइट, इट विल नेवर कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज द केस। Okay, so this was your mean lifetime, and then second one is, what do you mean by time period? So हमारा जो solution था, हमारा solution क्या था, यही से time period आएगा, x was equal to alpha exponential minus RT sin omega t plus phi, ठीक है। अब टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो या कितने टाइम जो है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए ले रहा है, तो इसका मतलब पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन होगा मतलब कितने टाइम के बाद जो है आपकी सेम इक्वेशन रिपीट होगी। तो अगर यहाँ पे आप t को सब्स्टिट्यूट कर दो, t प्लस 2π/ओमेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दो t को बाई t प्लस 2π/ओमेगा, सो आपका क्या आएगा, फिर से वही इक्वेशन आएगा, यही होगा ना, क्योंकि साइन ऑफ 2π by something plus t is again equal to sine of this, okay. So it means that the period is being repeated after this interval of time t plus 2π/omega. So this is the interval after which the motion will be repeated, okay. So it means that this is the time period. So t is equal to 2π/omega is the time period for the damped oscillations, right, which is further equal to 2π। अब हमें ये भी पता है ओमेगा हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ओमेगा को हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे दिस वन, under root of omega naught square minus r square, right. So this was my omega. So if I substitute this value of omega over here, this will become under root of omega naught square minus r square, right, which is iota। yes, iota तो मैंने नहीं सब्स्टिट्यूट किया था ना यहाँ पे, सी हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, ये था हमारा ओमेगा, आयोटा तो पहले ही आ गया था, आयोटा तो माइनस था, यहाँ पे जो माइनस बाहर लिया हमने उसकी वजह से आया था आयोटा ना, आयोटा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इनिशियली दिस वैल्यू वाज दिस वन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आर स्क्वायर जो है वो लेस देन है ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जिसका मतलब माइनस बाहर आ गया। अब वो माइनस जो बाहर आ गया उसको मैंने आयोटा ले लिया, लेकिन आयोटा तो एज इट इज है ना, हमने इस वैल्यू को हमने ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। यस मैम। ओके, सो अब जो R है आपका वो क्या है, वो डैम्पिंग है,
राइट, वो आपका डैम्पिंग की वजह से है, डैम्पिंग फैक्टर है वो। अगर डैम्पिंग नहीं होगा तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, सिंपल है। ठीक है, अगर ये जीरो होगा डैम्पिंग वाला पार्ट तो आपका सिंपली 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट आ जाएगा टाइम पीरियड। सो इन एब्सेंस, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। ओके, अच्छा अब एक चीज आपको देखना है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और भी है जो माइनस में है, माइनस में होगा तो ये क्वांटिटी आपकी कम होगी, कम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, राइट। सो व्हाट डज इट मीन कि डैम्पिंग, जब डैम्पिंग होती है तो डैम्पिंग की प्रेजेंस में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज क्वाइट हायर एज कंपेयर टू द टाइम पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अगर आप डैम्पिंग की प्रेजेंस में ऑसिलेशन कर रहे हो, अगर आप फ्रिक्शन की प्रेजेंस में ऑसिलेशन कर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द टाइम पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। ओके, so this is my time period, this is my time period for damping, for damped oscillation, 2 pi upon under root of omega naught square minus r square is the time period. ठीक है, सो अब क्योंकि डैम्पिंग की प्रेजेंस में टाइम पीरियड आपका स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, सो इट मींस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी स्लाइटली डिक्रीज्ड। व्हाई, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली, 1 by यस यस, एनी क्वेश्चन? no no Okay, so third one is frequency. ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, राइट। सो f इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ t which is equal to omega upon 2 pi. ठीक है, so this is further equal to under root of omega naught square minus r square divided by 2 pi. ठीक है, सो ऑब्वियस है अगर आप कंपेयर करोगे विदाउट डैम्पिंग से तो सो दिस विल बी लेस देन दिस वैल्यू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग। f is equal to ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये थी आपकी वैल्यू। इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो हो सकता है किसी दूसरी फॉर्म में आए, राइट। सो ओमेगा नॉट को आप कैसे लिखते हो फोर्स कांस्टेंट की फॉर्म में, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था तब आपको पता है, एंड आर इज इक्वल टू बी अपॉन 2m फ्रॉम डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे दोनों वैल्यूज को यू विल गेट f is equal to 1 upon 2 pi under root of k upon m minus b square upon 4m square। ओमेगा नॉट और r की वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, यू विल गेट दिस वैल्यू। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम। ओके, अभी कांस्टेंट ऑफ डैम्पिंग दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यू मे बी गिवन विद द वैल्यू ऑफ k दिया होगा, आपको m दिया होगा, b दिया होगा, हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जाए या हो सकता है आपको टाइम पीरियड दिया जाए, पूछा जाए, राइट। सो या हो सकता है आपको टाइम पीरियड दिया हो, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। सो ऑल द numericals are designed in such a way that you may be given with certain values of the constant and you may be find to ask the desired values। ठीक है,
next article is power dissipation in damped harmonic oscillator. See, हमने पहले भी किया था ये, like kinetic energy as well as potential energy is involved in this. So there must be a decay in the total mechanical energy of the system whenever damping is there. Okay, so due to resistance, due to any other frictional forces, so mechanical energy of the system is getting converted into heat, right? So let us see how much power dissipation is there while damping is present inside the system. मैम डैम्पिंग के केस में भी टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. No. Half of how much? Sorry. M half of total energy is equals to half m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. मैम ये डैम्पिंग के केस में भी ट्रू रहेगा? No. This is not true in case of damping. In case of damping, the energy will be exponentially, related to the initial energy of the oscillator. Let me explain this. You will get to know the things. Okay. Here you will find the exponential relation of energy with that of the initial energy. So when damping is weak, we are taking the case when the damping is weak. When means we are taking when there is low damping. When damping is low. Okay. Okay, so we know that whenever any system is set into oscillation, it is subjected to the frictional forces arising from the air resistance or from within the system itself, right? So we know that these forces also try to oppose the motion of the system, and the work done against these forces is dissipated out of the system as in the form of heat, right? So therefore, the total mechanical energy of the system will continuously decrease with time, and the amplitude of oscillation gradually decays to zero. So let us see what is the expression for the power dissipation. How does it happen inside the system when there is low damping? So at any instant of time t, the displacement of a damped harmonic oscillator is given by x is equal to alpha exponential minus RT sin of ओमेगा टी प्लस पाई. सेम एक्सप्रेशन जो भी हमने लो डैम्पिंग के लिए फाइंड आउट किया है, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द situation of a damped harmonic oscillator when there is low damping inside the system. Okay, where alpha and phi, we know that they are arbitrary constants. They are arbitrary constants. R is the damping constant. R is damping constant, and we know the value of omega. Omega is equal to omega naught square minus R square is the angular frequency of the damped oscillation, right? ओमेगा नॉट भी हम जानते हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m होता है इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है, जहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो k being the force constant, k हमें पता है k is the force constant. K is the force constant, right? Okay, so when damping is weak, that is R square is less than omega naught square, let's say, right? That is, what does it mean? R square की वैल्यू क्या होगी?
b square upon 4m square, क्योंकि r क्या होता है, b upon 2m होता है, right? So this means that this value, this quantity is very less than k upon m, right? And for our convenience, let us assume that, see यहाँ पे phi क्या है, phi is the phase, phi is the phase of the system. Initially, let us assume that phi is equal to 0 phase से हमने शुरू किया है, right? So initially let us assume that phi is equal to 0, so that this number 1 will become x is equal to alpha exponential minus rt sine of omega t, sine of omega naught t, okay? So this is the displacement of the damped harmonic oscillator, okay? Now let us differentiate this with respect to t. Dx by dt find out करते हैं. So dx by dt is equal to how much? This is minus of alpha into r exponential minus rt sine ओमेगा नॉट टी, ठीक है? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड किया हमने, आई मीन एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी का डिफरेंशिएशन किया और साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी एंड देन साइन ओमेगा नॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो दिस इज ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, ओके? So this is the dx by dt. अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे सिस्टम की. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, राइट? और v क्या है? v इज dx by dt. तो dx by dt की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज t, let us say this is te, is kinetic energy. This is equal to 1/2 m v square. So v is dx by dt, so it's square, okay? Let us substitute the value of dx by dt from here, from this equation. Let us say this is equation number 3. So let us substitute the value of dx by dt from here into it. So this will become 1/2 m. Now alpha is there inside, so alpha दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसका. So square outside, alpha square outside, and inside you will be having omega naught exponential minus rt cos omega naught t minus r exponential minus rt sine of ओमेगा नॉट टी एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है? होल स्क्वायर को अभी एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि हमें फाइनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है? हम बेसिकली क्या प्रूव करने वाले हैं, हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर हम टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? So this is 1/2 m अल्फा स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर का मैं एक्सपेंशन करने वाली हूँ. So this will become omega naught square cos square omega naught t plus r square sin square omega naught t minus 2r omega naught sin omega naught t cos omega naught t, right? So let us say this is equation number 4. Okay. And e part he has not taken. e की पावर -2t कॉमन लेना था, e की पावर -2rt कॉमन लेना था. Oh yeah. So एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -2
2RT को हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। इज इट ओके नाउ? यस मैम। ओके, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल करेंगे फ्रॉम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड और उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम पीरियड से, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, वन साइकिल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वन साइकिल ऑफ टाइम पीरियड मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम टोटल लेंगे। टोटल कैसे लेते हैं? हम इंटीग्रेशन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू T, right? And this entire term inside the bracket, so this will be 1/2 m alpha square exponential minus 2 RT, and then inside the bracket you are having omega naught square cos square omega naught T plus R square sin square omega naught T minus R omega naught sin 2 omega naught T, ठीक है। It should be 2R. Should be 2R. नहीं बेटे, मैंने इसको Okay. कॉम्प्रेस कर दिया। दिस इज 2 sin A cos, आई मीन 2 sin, या 2 sin A cos B, तो उसको कैसे लिखेंगे? sin of 2 थीटा, ठीक है। जिसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया है। 2 sin A cos B. Yeah. Okay, so this is the total energy, total kinetic energy divided by the time period. Time period कितना है? T है, T is the time period, ठीक है। तो ये हमने इसका एवरेज कर दिया। So this is the average kinetic energy of the system. Now you have to average for this quantity, you have to average for this quantity, you have to average for this quantity. अब ये क्या है? This is simply cos square theta, this is simply sin square theta, right? So cos square theta और sin square theta का एवरेज हमेशा हाफ होता है। ये आपने किया भी होगा पहले कभी, या नहीं किया है तो जस्ट रिमेंबर इट, बिकॉज cos square और sin square का जो एवरेज लेते हैं हम विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और sin थीटा का जब आप करते हो सो इट कम्स आउट टू बी 0, ओके। सो दिस विल गिव यू 1/2 m alpha square exponential minus 2RT, and then inside you will be left with half of, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर भी है, so I will take it ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, सो दिस विल बी आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसका थर्ड वाले का जो एवरेज है वो क्या आएगा? 0 आएगा। So therefore the total kinetic, the average kinetic energy of the system is equal to 1/4 m A square exponential minus 2 अल्फा r, लिया हाँ जी, अल्फा लिया m अल्फा स्क्वायर, हाँ अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर ही लिया है, सॉरी अल्फा स्क्वायर है। So this is m alpha square exponential minus 2RT, and then inside the bracket you will be having omega naught square plus r square, ठीक है। अब हमने इनिशियली एक केस एज्यूम किया था कि आपका ओमेगा नॉट जो है दिस इज क्वाइट हायर देन आर स्क्वायर, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे दिस विल बिकम एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 just a minute.
this should be equal to 1 by 4 m alpha square omega naught square exponential minus 2 RT. Okay, so similarly you can find out the potential energy of the system. So let us go for that. We know that potential energy V for a harmonic oscillator is 1 by 2 kx square, where k is the force constant, right? So this is equal to 1 by 2 k, and you can substitute the value of x over here. X की value क्या थी? Alpha exponentially minus RT and sine of omega t, sine of omega naught t स्क्वायर. ठीक है, यही था ना जो हमारा x की वैल्यू थी, वो क्या थी? ये देखो, x की वैल्यू आपका ये था अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. सो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड देन this would further become half k alpha square exponential minus 2 RT sin square ओमेगा टी. ठीक है, और k को हम कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, राइट? दिस इज फ्रॉम वेरी इनिशियल आर्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने किया था ये. सो k इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 1 by 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 RT साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t. अब इसका एवरेज निकालना है आपको. सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ओवर वन पीरियड ऑफ मोशन and is given by V average is equal to, मैम बस 1 by 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? हाँ 1 by 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. सो दिस इज 1 by 4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 RT. ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो 1 by 2 होता है. सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो देयरफॉर नाउ टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो दोनों को ऐड कर देंगे. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो द टोटल एनर्जी विल बिकम E is equal to T average and then so total energy E is equal to, total average energy is equal to kinetic energy, average kinetic energy plus average potential energy. So दोनों को ऐड कर देंगे. So this is your 1 by 4 m alpha square omega naught square exponential minus 2 RT plus potential energy is 1 by 4. Just a minute. This is again 1 by 4. No? Yeah, 1 by 4 m alpha square omega naught square exponential minus 2 RT. ठीक है, this is 1 by 4. Okay, so इसको ऐड करोगे, so this will give you 1 by 2 m
alpha square omega naught square exponential minus 2RT. Okay, so this is the total, or this is the average energy of the oscillation. This is the average energy of the damped oscillations. Okay, so देखो अगर t is equal to 0 होगा, इनिशियली कितनी एनर्जी होनी चाहिए आपके पास? इफ t is equal to 0 then this factor will become 1. तो इस केस में आपकी एनर्जी वही होगी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में होती है. E is equal to 1/2 E naught rather is equal to 1/2 m a square omega naught square. लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका ऑसिलेशंस बढ़ती जाएंगी, so this will be an exponential function of the time. Okay, so it means that E is equal to E naught exponential minus 2RT. तो एनर्जी डीके जो होगा वो टाइम के साथ कैसे होगा? एक्सपोनेंशियली होगा. So this is a negative exponential decay of E with respect to time period. Right? So this is total energy of the oscillation. This is total energy of the damped harmonic oscillations. Right? Power dissipation क्या होता है? Power dissipation, P is negative rate of change of dE with respect to dt. This is power, okay, which is equal to कितना होगा? d by dt कर लीजिए, E की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. E कितना है? E naught exponential minus 2RT, which is further equal to 2R E naught exponential minus 2RT, और which is further equal to 2RE. इसको अगर आप E सब्स्टिट्यूट कर दो, this is 2RE. This is power dissipation. इतना पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है in the form of this heat energy. Is this okay? Any doubt? मैम एवरेज ऑफ साइन का क्या बताया था? साइन और कॉस का एवरेज? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है हाफ. ठीक है, और साइन थीटा का एवरेज होता है 0. सिमिलरली कॉस का क्या होगा? कॉस का भी 0 ही होता है as far as my memory goes. अदरवाइज आप चेक कर सकते हो एक बार, but I think this is also 0. Yes, any doubt? हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली. Yes, students, any doubt? No ma'am. Okay. आपका I don't know who was this, but कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. I will reply. Okay. So that's all for today, students. One more thing I just wanted to tell you that you haven't submitted the experiment number 2, and I told you last week was the कर दिए. Ma'am, submitted already. Ma'am, some of them have submitted and some of them have still not submitted. Okay, so Ayush, please make a list who has submitted and who has not submitted. Okay. And I would like to inform all the students that even if you have not submitted it yet, please do it by tomorrow. And Ayush, by tomorrow you will be submitting me the final list of the students who have submitted and who have not submitted, and then in a folder the experiments of all the students that who have submitted. Okay. Okay, sure ma'am. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, students. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.